आसनसोल नगर निगम चुनाव को देखते हुए पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में टीएमसी नेता व शिवदासन दासू और माकपा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। কোটি কোটি টাকা স্যাংশনের জন্য জামুরিয়া পৌরসভা রানীগঞ্জ পৌরসভার কুলটি পৌরসভাকে এখানে জুড়ে দেয়নি। যে বাচ্চাটা হামাগুড়ি দিতে যায়নি তাকে বলছে 500 কিলোমিটার রেসে তোমাকে দৌড়াতে হবে। আরে একটা বাচ্চার ঘাটটাও সোজা হতে দিতে হয়, একটু ডাঁটো হতে দিতে হয়, তারপরে তাকে মা অন্য লোকের কোলে দেয়। এ তো যে পৌরসভাগুলো ভালো করে ঠিকমতো তাদেরকে বরাদ্দ স্যাংশন করছিল না, সেই সব পৌরসভাগুলোকে আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত করে দিল। শুধুমাত্র লুট চলছে, লুট। গোটা কলকাতা জুড়ে, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, গোটা আসানসোল কর্পোরেশন জুড়ে শুধু লুট চলছে। কত সাফাই কর্মী প্রয়োজন হয়, কত সাফাই কর্মী প্রয়োজন হয় এই 106টা वार्डे। किताब खोलकर, खाता खोलकर, कॉपी खोलकर देख लीजिए कि कितना सफाई कर्मी से चल रहा है। 1 साल से ज्यादा सफाई कर्मी लोगों का नाली का ड्रेन का सफाई करता जा रहा है, लेकिन जमुड़िया में 1 साल कॉन्ट्रेक्चुअल सफाई कर्मी वहां पर काम कर रहा है। 1 साल तक उसका वेतन नहीं हुआ। के देवे जवाब? मीनाक्षी बच्चा में কিছুদিন পহলে কলকাতা থেকে আসছে, পড়াই লেখাই করে, এখন একটা ইলেকশন ফেস করেছে। তো দুটো লোক চিনে যাকে, যার বাড়ির মধ্যে তৃণমূলের প্রেসিডেন্ট ছিল মহেশ্বর মুখার্জি, যার বাবার ছোট ভাই। ই কি বলবে বাচ্চা মেয়ে, তো যাকে কি বুঝাবে বলো। ও বামফ্রন্টে 34 সালে রাজ দেখেছে, ও সময় 5 বছরের বাচ্চা ছিল। আর বামফ্রন্টে 34 বছরের রাজু দেখেছে, 3-4 সালের বাচ্চা ছিল। সিপিএম কি এরকম চালিয়েছে 34 সাল? ভোট লুটি নেই সিপিএম, আতঙ্ক করি নেই সিপিএম, মিথ্যা কেস দিয়ে নেই সিপিএম। কি ডেভেলপমেন্ট সিপিএম করেছে 34 বছরে? मीनाक्षीকে জিজ্ঞেস করুন ও 34 বছর দেখেছি কিনা। ও 2-3 সাল থেকে এখন রাজনীতি মাঠে আসছে, আন্ডারস্ট্যান্ড বলে যাচ্ছে। বলতে দিন ভালো মেয়ে, যাকে যে সময় ও আসছে রাজনীতি করার জন্য বামফ্রন্টে, ও সময় বামফ্রন্ট জিরো হয়ে গেছে। ঠিক আছে, उसका कोई গুরুত্ব দিতে চাইছে না। ও তো বামফ্রন্টে রাজ দেখি নেই, তো বামফ্রন্ট থেকে আসছে, বামফ্রন্টে রাজনীতি করছেন। তো বামফ্রন্টে 34 সাল দেখুন। আজ দুর্গাপুর লেকে 56 ভোটে লেকে বলছেন, আসানসোল লেকে বলছেন। তো এই 56 ভোটে তো সিপিএম জিতে আসছে 34 সাল ক্ষমতাতে। 56 ভোট না করতাম তো সিপিএম ক্ষমতাতে থাকতাম। ये কি বলবে मीनाक्षी? मीनाक्षी বিরুদ্ধে আমি অত বলতে চাইছি না, কেন उसका যে চাচা আছে না, ও আমার আন্ডারে ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিল তৃণমূলে। এই জন্য আমি বেশি যাকে কিছু বলতে চাইছি না। उसको রাজনীতি বুঝতে বলুন, ভাষণ ভালো দে, ভালো ভাষণ দিচ্ছে। আর युवा নেত্রী সব ঠিক আছে, মানে রাজনীতি ইতিহাস জানতে বলুন। পশ্চিম বেঙ্গলে কি ছিল, কত আতঙ্ক ছিল, যে সিপিএম এর বিরুদ্ধে আমরা যে লড়াই করে আসছে, কি রকম আসছে ও দেখেছেন। আজকে ডেভেলপমেন্টের কথা বলছে। 34 সাল সিপিএম কি ডেভেলপমেন্ট করেছে? মমতাদি পশ্চিম বেঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে পশ্চিম বেঙ্গলে মানুষ দেখছে ডেভেলপমেন্ট কি আছে। কর্পোরেশনে কি ডেভেলপমেন্ট করেছেন? আপনার মিউনিসিপ্যালিটি ছিল, আসানসোলে কর্পোরেশন ছিল, আসানসোলে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল বামফ্রন্টের সময়। কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বলুন? ও কর্পোরেশন, ওই সময় আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি দেখেছে ও, না আসানসোল কর্পোরেশন ও দেখেছে? আমরা তো আসানসোলে থাকি, আমরা তো জানি আসানসোল কর্পোরেশন কি ছিল, না এ তো আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি কি ছিল, আমরা তো দেখেছি। তো কি ডেভেলপমেন্ট ওই সময় হয়েছিল? আজকে ডেভেলপমেন্টের লেহার হয়েছে আসানসোলের মধ্যে, পুরো পশ্চিম বেঙ্গলে। এই তো বাচ্চা মেয়ে এখন ভাষণ ভালো দিচ্ছে। আমি তো কিছুদিন দেখেছিল, ওকে টিভিতে দেখছিল, ফেসবুকে দেখছিল, ভাষণ ভালো দিচ্ছিল। তো আমি বুঝতাম একটু জেলা থেকে একটু। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद आज से बंगाल में कक्षा 8 से 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों के खुलने के बाद छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आसनसोल स्थित धक्का एनसी लहरी स्कूल में आज स्कूल खुलने के बाद पहुंचे छात्र छात्राओं द्वारा सभी कोरोना नियमों को मानते हुए पढ़ाई शुरू की गई है। स्कूल प्रबंधन द्वारा भी कोरोना नियमों के तहत यहां पढ़ाई की शुरुआत करवाई जा रही है। খুব
ভালো লাগছে, কারণ 2 বছর পর স্কুলে আসছি। এমনিতে বাড়িতে মানে এতটাও ভালো হয়নি যতটা স্কুলে হয়। 2 বছর এমনিতে বাড়িতে পড়াশোনা করেছি, টিউশন পড়াশোনা করেছি, যেটুকু পেরেছি পড়াশোনা করেছি, কিন্তু স্কুলের মতো মানে কোনো কিছু নেই। স্কুলের মতো কি নাম? বর্ণালী হালদার। আমাদের রীতিমতো নষ্টই হয়ে গেছে বলতে চলে। তো এত বছর মানে 2 বছর পরে স্কুল খুলে মানে সত্যি মানে আনন্দে রীতিমতো আমরা আত্মহারা হয়ে গেছি। আর আমরা চাই না যে আবার করে স্কুল বন্ধ হয়ে যাক, এভাবেই যেন চলতে থাকে। তো কি করলে 2 বছর? এই 2 বছর রীতিমতো যাকে বলে নষ্ট হয়ে গেছে, এবং আমরা ঘরেই যতটুকু পড়াশোনা হয় ততটুকুই করেছি, কিন্তু স্কুলে এসে পড়ার যে আনন্দটা সেটা বোধহয় বাড়িতে মিশে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। কি নাম? ঐশানী পাল। দেখুন, আমাদের প্রথমত যে ছাত্রছাত্রীরা একদম কোভিড প্রোটোকল মেনে তাদের বসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা ক্লাসকে ভেঙে আমরা 2টো ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছি যাতে তাদের ডিস্টেন্স মেনটেন হয়, এবং কোনো রকম কোনো ছাত্রছাত্রী তারা টিফিন অপরকে শেয়ার করতে পারবে না, কারোর জল অপরকে শেয়ার করতে পারবে না, এবং আমাদের গেটে ঢোকার টাইমে স্যানিটাইজ করা হয়েছে এবং স্কুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এবং এই কোভিড মহামারী দেখার জন্য আমাদের স্কুল থেকে মাস্টারমশাইদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই 2 জন মাস্টারমশাই তারা কন্টিনিউ ভিজিট করবে যেন ছাত্রছাত্রীরা কখনো মাস্ক না খুলে এবং তারা কোভিড বিধিকে মেনটেন করে চলে, এই দৃষ্টি তাদের থাকবে। অর্ডার অনুযায়ী আমরা আজ থেকে স্কুল খুললাম। কোভিড প্রোটোকল সমস্ত মেনে আমরা আজ স্কুল খুলছি। গভর্নমেন্টের যে প্রোটোকল রয়েছে, কোভিড প্রোটোকল রয়েছে, সবগুলো আমরা ব্যবস্থা করেছি ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে বসানো হবে, কিভাবে তাদের হাতে স্যানিটাইজ বা কিভাবে তারা টিফিন শেয়ার করবে না বা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবে না বা খুব গ্যাদারিং সৃষ্টি করবে না, সবগুলোই আমাদের টিচারদের সঙ্গে একটা মিটিং হয়েছে এবং টিচাররা যথেষ্ট কনসার্ন আছে এবং ছাত্রছাত্রীদের আমাদের সবাইকে কনসার্ন বোঝানো হচ্ছে এবং তারাও যথেষ্ট সচেতনতার সঙ্গে স্কুলে এসছে। আশা করি আগামী দিনে আমরা এই কোভিড মহামারীকে অতিক্রম করে পুনরায় স্বাভাবিক স্কুলে ফিরে পাবো এবং স্কুলের একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবো। গাইডলাইন আমাদের প্রথম হচ্ছে প্রত্যেককে মাস্ক পরে অবশ্যই আসতে হবে, হাতে স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে, বারবার হাত ধোয়ার কথা আমরা বলেছি, নিজস্ব সাবান ইউজ করতে হবে বা আমরা সাবান স্কুল থেকে কিছুটা প্রোভাইড করব যারা আনবে না, আর নিজস্ব জল যারা যেন নিয়ে আসে, যদি কেউ না আনতে পারে তাহলে আমরা জলের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করেছি। সেখানে যেন একসঙ্গে সবাই মিলে বসে টিফিন খাওয়া যে ব্যাপারটা আগে আমাদের স্কুলে ছিল সেটাকে আমরা সবাই সচেতনতার মধ্যে দিয়ে দেখব যাতে ওই জিনিসগুলো এখন যে মহামারী সৃষ্টি সেটাতে না হয়, এবং আরও কোভিড যে প্রোটোকল রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা ওদেরকে সচেতনতা করব, কিভাবে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে হবে, কিভাবে স্কুল আসতে হবে, এবং সেইগুলো যেন তাদের গার্জেনদের সঙ্গে শেয়ার করে, কিভাবে বাড়িতেও এবং বাড়ির বাইরে যখন যাবে সেগুলোও তারা কিভাবে সচেতন থাকবে যাতে এই মহামারী থেকে আমরা সহজেই দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারি। ক্লাসরুমে আমরা একটা বেঞ্চে 2 জন করে বসানো চেয়েছে। আমাদের মোটামুটি যেখানে 4-5 জন বসানো হতো আগে, সেখানে আমরা 2 জন করে বসানোর চেষ্টা করছি এবং কিভাবে স্টুডেন্ট আসছে আমরা ক্লাসটাকে ভেঙে দিচ্ছি, সেভাবে ক্লাসটাকে ভেঙে আমরা সেভাবে কারণ অলরেডি আমরা এখন তো নিচু ক্লাস পাচ্ছি না, 5, 6, 7 পর্যন্ত, 8 পর্যন্ত আমাদের নতুন শুরু হলো। আগে 9, 10, 11, 12 হতো, এবার 8 যোগ হয়েছে। তো আমরা সেই সময় আমাদের রুম যথেষ্ট রয়েছে এবং টিচার সংখ্যাও রয়েছে। আমরা সেইভাবে যাতে খুব সুন্দরভাবে পরিবেশ একটা তৈরি করা যায়, যাতে কোভিড প্রোটোকলের সমস্ত মেনে মানা যায়, আমরা সেদিকে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকব। আমার নাম হচ্ছে উজ্জ্বল দত্ত, हेडमास्टर दादका एनसी लाड़ी विद्या मंदिर। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से राज्य में सभी स्कूल बंद हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए स्कूल खोले गए थे, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उनको भी बंद कर देना पड़ा था। हाल ही में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि 3 तारीख से सभी स्कूलों में कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। इसी क्रम में आज रानीगंज के स्कूल पारा में स्थित गांधी मेमोरियल स्मृति उच्च बालिका विद्यालय और NSB रोड इलाके में स्थित मारवाड़ी सनातन विद्यालय में भी आज से पठन पाठन शुरू हो गया। जब हमारे संवाददाता ने इन 2 स्कूलों का जायजा लिया तो पाया कि विद्यार्थी फिर से स्कूल में आकर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 साल के लिए काफी मुश्किल भरे रहे
ऑनलाइन में पढ़ाई जरूर हो रही थी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई कभी भी कक्षा में आकर पढ़ाई की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि कक्षा में आकर पढ़ाई करने से विद्यार्थी अपने शिक्षकों से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। वहीं ऑनलाइन में पढ़ाई करते वक्त नेट की भी असुविधा होती है। साथ ही कई परिवारों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवा पाना आर्थिक रूप से संभव नहीं हो रहा था। वहीं जब हमने मारवाड़ी सनातन विद्यालय के एक शिक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि आज स्कूल खोलने से पहले स्कूल को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया है। साथ ही बच्चों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है और जिन बच्चों के पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी मुहैया कराया जा रहा है। विदित हो कि हाल ही में ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि 3 फरवरी से कक्षा 8 से लेकर 12 तक की पढ़ाई स्कूलों में होगी, लेकिन 1 से लेकर 7वीं तक की पढ़ाई मोहल्ले में पाठशाला खोलकर करवाई जाएगी। इस संदर्भ में जब हमने मारवाड़ी सनातन विद्यालय के शिक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि मोहल्ले में पाठशाला में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का भारी अभाव है। खासकर विज्ञान विभाग में शिक्षकों का भारी अभाव देखा जा रहा है। में पहले जैसे यस्टरडे द होल स्कूल कैंपस वाज सैनिटाइज्ड, ये पहले प्रायोरिटी। कुछ का हम लोगों ने पेंटिंग भी कराया जो भी संभव था। एंड वी आर हार्टली वेलकमिंग बैक द स्टूडेंट्स बैक टू स्कूल, क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड इन द ऑफलाइन एजुकेशन रादर देन ऑनलाइन एजुकेशन। नॉट ओनली पॉवर्टी, ये गरीबी की बात ही नहीं है सिर्फ, ऑनलाइन में वो ईज फील नहीं करते, जो कंफर्टेबली वो डिस्कशन कर सकते हैं या जो इंस्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरह आंसर करना है, ये जो फिजिकल कांटेक्ट है, ये जो जेस्चर है, ये ज़रूरी है और इसके लिए बच्चे तैयार रहते हैं और ये ज़्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं इससे। सर ऑल बच्चे ये बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, इससे बहुत बाधित हुआ है। बहुत बच्चे ड्रॉप आउट की तरफ चले गए हैं जिसके गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो आउट ऑफ दैट इंटरेस्ट वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को इधर उधर डाइवर्ट कर दे रहे हैं कि कुछ काम में लग जाओ, कुछ ये करो। एक वैक्यूम तो क्रिएट हुआ। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर रिलेशनशिप में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए अभी कम से कम हमें 1 क्वार्टर यानी 3 मंथ्स तो देना ही है। सर ऑल स्टूडेंट्स आपका वैक्सीनेशन है? टोटल वैक्सीनेशन स्टूडेंट्स का लगभग 300 प्लस का है। सेकेंड डोज भी लगभग 200 का है। कल फिर एक मॉपअप कैंप हो रहा है वैक्सीन का, तो हम आशा करते हैं कल लगभग हम लोग पूरा कर पाएंगे वैक्सीन, क्योंकि नहीं हो रहा है, बच्चे आने रहे हैं, मे बी ड्यू टू सरस्वती पूजा और गैप। सर पूजा इस बार हाँ, पूजा इस बार हो रही है। पूजा हम लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक पूजा करेंगे। एक तरफ बोल रहे हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी कुछ इस तरफ जा रहा है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। तो डिजिटल जितना भी हो जाए, माइंड इज़ नॉट ए डिजिटल गेम। ये रिसेप्टर कौन है, स्टूडेंट्स है सामने है, उसको टीचर क्या बता रहे हैं, वो सामने की जो बात होती है वो डिजिटल में कभी नहीं आ सकती। डिजिटल है कि जो बच्चे प्रॉपर चैनल में या स्कूली एजुकेशन नहीं ले सकते, ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं पढ़ना चाहते, या उनका डाइवर्सन है, उनका एम दूसरा है, तो उनके लिए डिजिटल हो सकता है। तो एक बाइफर्केशन होना चाहिए। वो एक खोज है। हाँ, वो एक खोज है। एक खोज है। इसकी संभावनाएं अभी बहुत क्षीण है। भारतवर्ष जैसे देश में अभी डिजिटल होना अभी भी स्टिल इट इज ए ड्रीम स्टेज फॉर बीइंग डिजिटल। थैंक यू सर। क्योंकि माइंड को डिजिटल होना जरूरी है। ऑब्वियसली सर। सर आपका नाम? तो ये जो DK सिंह, हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, ये जो देखा जाए, लेकिन हमें लगता है कि ये पॉलिसी नियामतपुर में 3 फरवरी नगर निगम के मद्देनजर वार्ड नंबर 59 के टीएमसी प्रत्याशी ने जोरदार चुनाव प्रचार आरंभ किया। चुनाव प्रचार के दौरान इलाके के मदरसा मोहल्ला गेट तथा ईटा भट्टा में चुनाव प्रचार किया गया। इस अवसर पर टीएमसी प्रत्याशी कंचन राय ने कहा कि चुनाव में टीएमसी समर्थकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी द्वारा पूरे इलाके में विकास कार्य किया गया है, जिस कारण यहां टीएमसी की जीत निश्चित है। वहीं नगर निगम के पूर्व एमआईसी मीर हाशिम ने कहा कि नगर निगम के सहयोग से पूरे इलाके में सड़क, नाली, पानी तथा गरीब तबके के लोगों को रहने के लिए घर भी बनवाया गया है। उन्होंने कहा कि यहां सरकार ने लोगों के चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड बनवाया है ताकि लोगों का बेहतर इलाज हो सके। पड़ा घूम रहे हैं मुस्लिम एरिया में, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर ये जो बात, जैसे एक तो बात अभी सुनाई दिया, जो बात हम लोग तो एक ही वार्ड में, एक ही जगह में, हम विष्णु विहार नीलाचल से तक रहते हैं। ये जो जगह है हम लोग का, जो हसीमदा बोले, हम लोग का पुराना टीम है। एक टीम पहले से हम लोग से काम करते थे। हसीमदा हम लोग का ऊपर था नेता, सब देखते थे, हम लोग उधर देखते थे, हसीमदा टोटल वार्ड देख रहे थे। ऐसे ऐसे हम लोग का काम था, ठीक है। ऐसा बाहर का कुछ नहीं है। और यहाँ का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ का आदमी बहुत हम लोग को बहुत माने जैसे हम लोग को आश्वास दे रहे हैं, हम लोग के साथ है। दादा हासिमदा के साथ आप घूम रहे, पाड़ा पाड़ा में कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का आपका हासिमदा के साथ? হাসিমদার দেখুন এখানে যা কাজ হয়েছে, প্রচুর কাজ হয়েছে। হাসিমদার তেমন অনেক কাজ হয়েছে। আমি সব জায়গায় দেখছি যেখানে মানুষ হাসিমদাকে খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছে। হাসিমদার মানে গ্রহণযোগ্যতা খুবই মানুষের কাছে আছে এবং খুব ভালো রেসপন্স। वार्ड में आप लोग प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपका नया कैंडिडेट को टिकट दिया गया कंचन राय को, जहां से लोग हासिम हासिम कह रहे थे, आज देखा जा रहा है कि हासिमदा खुद कंचन राय का प्रचार में निकले हुए हैं। रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपके कैंडिडेट को? देखिए रिस्पांस बहुत अच्छा है। कैंडिडेट नया हो सकता है लेकिन टीम जो है और टीम वर्क जो है, पार्टी जो है वो पुरानी है। वोट तृणमूल कांग्रेस के नाम से मिलता है, ममता बनर्जी के नाम से मिलता है। और ममता बनर्जी जो उन्नयन का काम करी है, इसको कोई भुला नहीं सकता। आज लोगों के डोर टू डोर जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि मैं अपना ज़मीर से दगा नहीं कर सकता, मैं ज़मीर को झुटला नहीं सकता। हमारी ज़मीर कह रही है कि हमें तृणमूल कांग्रेस को वोट देना है, क्योंकि उसने लक्की भंडार के नाम से 500 रुपये हर माँ बहनों का खाता पे आया है। स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया गया, जिसके लिए लोग चंदा करते थे, गरीब लोग मोहल्ला में चंदा होता था कि हाँ इसको बड़ा इलाज हो गया, इसका हार्ट का ऑपरेशन कराना है। आज ममता बनर्जी वो गरीब का मजबूरी देखते हुए स्वास्थ्य साथी कार्ड दिए, जिससे 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है गरीब का। इसका और क्या चाहिए? दादा अभी आप जो पाड़ा में कंपेनिंग कर रहे हैं, पाड़ा का क्या नाम है? ये मदरसा मोहल्ला है। दादा यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप लोगों का नगर निगम द्वारा कुछ घर भी बना हुआ है, नगर निगम द्वारा, ये किसके कार्यकाल में बना है? ये तृणमूल का पीरियड में बना। आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, जब मैं एक्स MIC अभी बोल रहा हूँ, मैं जब MIC था तो मेरे पीरियड में हुआ है। और ममता बनर्जी का अनुप्रेरणा से ही हुआ। अब जो रास्ता देख रहे हैं, ड्रेन देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये ममता बनर्जी का ही अनुप्रेरणा से पूरा काम हुआ है। और हम लोग आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ये सब काम करा है। इलाका में आज कोई काम बाकी नहीं है, लोग खुश हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं 12 तारीख का, कि जो हमारा उम्मीदवार कंचन राय, उसको 1 नंबर बटन दबाकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट से लीड दिलाएंगे और जिताएंगे। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी, लोग हमारे साथ हैं। लेकिन विपक्ष के कुछ कैंडिडेट यहाँ खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ के कैंडिडेट नहीं है, आप लोग को काम कराने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा। इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए जो कैंडिडेट है, विपक्ष का जो भी उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन तजुर्बा में भी बच्चा है। वो बैनर और पोस्टर लगाने से, झंडा लगाने से कोई इलेक्शन नहीं जीत जाता है। अगर इलेक्शन जीतना होता है तो उसके लिए ग्रास रूट से काम करना होता है, ज़मीनी सतह पे काम करना होता है। और ये ज़मीनी सतह पे काम एक ही पार्टी करती है, वो जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी के सैनिक और सिपाही है, वही ज़मीनी सतह पे काम करते हैं। और लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, उनके आदर्श को पसंद करते हैं, उनके स्कीम को पसंद करते हैं, उसके नीति को पसंद करते हैं। और उसकी नीति को देखते हुए आज तमाम लोग तृणमूल कांग्रेस में वोट देंगे। तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार चाहे मीर हासिम हो या कंचन राय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।